السلام علیکم، میرا نام عصمت ہاؤس والی ہے اور میں ریان اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں، بیچ نمبر 24 لیول نمبر 01 کی۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں زندگی بھر سیکھنے کی اہمیت، تو اس ٹاپک پہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو لا رہے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی، آپ سے میرا ایک پہلا کوشچن ہے کہ سب سے پہلے زندگی بھر مطلب لائف لانگ لرننگ سے کیا مراد ہے اور آج کے دور میں یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھتی ہوں۔ شکریہ عصمت۔ جواب بہت اچھا سوال ہے۔ لائف لانگ لرننگ کا مطلب ہے کہ ہم پوری زندگی سیکھتے رہیں، چاہے اسکول کے بعد بھی۔ آج کے زمانے میں نئی ٹیکنالوجی، خاص کر اے آئی، بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہے۔ اگر ہم سیکھنا روک دیں تو پیچھے رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ سیکھتے رہتے ہیں پھر نئے موقع پاتے ہیں اور بہتر نرنے لے سکتے ہیں۔ مطلب یہ صرف کریئر کے لیے نہیں، بلکہ ایک بہتر، زیادہ جاگروک انسان بننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو آپ کا کہنے کے مطابق کہ مطلب آج کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، تو وہ کیوں بدل رہی ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، خاص کر اے آئی، آٹومیشن اور انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ نئے ٹولز، نئی سکلز اور کام کرنے کے نئے طریقے ہر انڈسٹری کو بدل رہے ہیں۔ اس لیے جو شخص سیکھتا رہتا ہے وہ ان تبدیلیوں کے ساتھ خود کو بہتر ڈھال سکتا ہے۔ ہم، تو مسلسل سیکھنے کی عادت انسان کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھلنے میں کیسے مدد دیتی ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھتی ہوں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ جب انسان لگاتار سیکھتا رہتا ہے تو اس کی سوچ چوڑی ہوتی ہے، سکلز مضبوط ہوتی ہے اور وہ نئی چیلنج کو کانفیڈنس سے فیس کر پاتا ہے۔ جیسے اگر کسی کمپنی میں نیا ٹول آ جائے تو جو سیکھنے کے لیے تیار ہے وہ جلدی سمجھ لے گا، جو نہیں سیکھے گا اسے دقت ہوگی۔ یہی عادت زندگی کی ہر فیلڈ میں مدد کرتی ہے، پڑھائی، کام، بزنس، یہاں تک کہ عام دنچریا میں بھی۔ اوکے، تو کیا صرف ڈگری حاصل کرنا کافی ہے یا انسان کو پوری زندگی سیکھتے رہنا چاہیے، اور کیوں؟ دیکھتی ہوں۔ نہیں، صرف ڈگری کافی نہیں ہے۔ ڈگری بیس ضرور ہے، لیکن دنیا بدلتی رہتی ہے۔ اگر آپ بس اتنی ہی جانکاری پر ٹکے رہیں جو پہلے ملی تھی تو وقت کے ساتھ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ لگاتار سیکھتے رہتے ہیں وہ اپنی سکلز اپڈیٹ کرتے ہیں، نئے موقع پکڑتے ہیں اور بدلتے حالات کے ساتھ آسانی سے ڈھل جاتے ہیں۔ تو ڈگری انت نہیں، ایک شروعات ہے، اور کنٹینیوس لرننگ ہی اصلی چابی ہے ترقی کی۔ نئی مہارتیں سیکھنے سے ایک فرد کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھتی ہوں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ نئی اسکل سیکھنے سے پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف دونوں پر پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ خود پر کانفیڈنس بڑھتا ہے، سوچ اور براڈ ہوتی ہے، پرابلم سالونگ بہتر ہوتی ہے اور بدلاؤ کو پازیٹیو وے میں ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ پروفیشنلی بھی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، پروموشن کے موقع بڑھتے ہیں اور آپ اپنی فیلڈ میں زیادہ قابل بنتے ہیں۔ مطلب لگاتار سیکھنا صرف نالج نہیں بڑھاتا، بلکہ آپ کی اوور آل گروتھ اور اپارچونیٹیز دونوں کو بڑھاتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی اور اے آئی نے سیکھنے کے طریقوں میں کیا تبدیلی پیدا کی ہے؟ کچھ وضاحت کریں گے؟ ہاں، دیکھتی ہوں۔ شکریہ، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ٹیکنالوجی اور اے آئی نے سیکھنے کو بہت بدل دیا ہے۔ پہلے صرف کتابیں اور کلاس روم پر ڈپینڈ رہنا پڑتا تھا۔ ہم، اب آن لائن کورسز، ایجوکیشن ویڈیوز اور کے مطابق بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایکٹیو جو ان ٹولز کو اپنے ایفرٹ، کریٹیکل تھنکنگ اور کیوریوسٹی کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہی سب سے بہتر نتیجے پاتا ہے۔ ہم۔ ٹیکنالوجی سیکھنے کو آسان بناتی ہے، پر ایفرٹ اور کریج ابھی بھی ضروری ہے۔ طلباء میں زندگی بھر سیکھنے کی عادت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھتی ہوں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ طلباء میں لائف لانگ لرننگ کی عادت جگانے کے لیے سب سے پہلے کیوریوسٹی اور سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ انہیں صرف ایگزام کے لیے نہیں
बल्कि नई चीज़ें समझने की शौक के लिए सीखने को मोटिवेट करें। टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को बुक्स, रिसर्च, स्किल बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी और एआई का पॉजिटिव इस्तेमाल सिखाने के लिए गाइड करें। सबसे ज़रूरी बात, उन्हें ये एहसास कराएं कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री का नाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर खुद को बेहतर बनाने का सफ़र है। अगर हम क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और सवाल करने की आदत डाल दें, तो वे लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकते हैं। ओके, तो क्या ऑनलाइन कोर्सेज़ और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सीखने को ज़्यादा आसान बना रही है? कैसे? एक सेकंड। हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने सीखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और फ्लेक्सिबल बना दिया है। पहले किसी इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था। अब आप घर बैठे दुनिया भर के टीचर से सीख सकते हैं, अपनी टाइम के हिसाब से। हुँ, ना देखकर स्किल्स पर हज़ारों कोर्सेज मौजूद हैं। एआई भी हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। लेकिन सिर्फ एनरोल करना काफ़ी नहीं, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और जो सीखा है उसे ज़िंदगी में अप्लाई करना सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सही इस्तेमाल से ये प्लेटफॉर्म्स हर उम्र के लोगों के लिए सीखने को डेमोक्रेटिक और एक्सेसिबल बना देते हैं। तो ज़िंदगी भर सीखने में किताबों का क्या किरदार रहा है? हल्का सा चेक करती हूँ। बहुत बढ़िया सवाल। किताबों का किरदार हमेशा अहम रहा है और रहेगा भी। किताबें डीप अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और अलग-अलग नज़रिए समझने में मजबूत बनाती हैं। रेगुलर रीडिंग से लैंग्वेज बेहतर होती है और वोकैब्युलरी बढ़ती है और फोकस बढ़ता है। आज के टाइम पर बुक्स और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना बेस्ट है। किताबें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती हैं और ऑनलाइन टूल्स प्रैक्टिकल गाइडेंस और स्पीड दोनों को बैलेंस करके चलें तो सीखने का प्रोसेस और भी इफेक्टिव हो जाता है। तो मुसलसल तो सीखने में किताब अब भी उतनी ही ज़रूरी है, हुँ, बस तरीका थोड़ा अपडेट। मुसलसल सीखने से इंसान के एतमाद और शख्सियत में क्या तब्दीली आती है? चेक करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल। लगातार सीखने से कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी दोनों बहुत पॉजिटिव तरीके से बदलते हैं। हुँ, जब आप नई जानकारी और स्किल्स लेती रहती हैं तो अपने डिसीजंस पर ज़्यादा भरोसा होने लगता है। अलग अलग सिचुएशन को बेहतर समझ पाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रांग होती है। साथ ही कम्युनिकेशन और टीम वर्क भी इम्प्रूव होता है। इंसान चीन से डरने के बजाय उसे एक नए मौके की तरफ तो देखने लगता है। यही ओके, तो मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद नई चीज़ें सीखने के लिए वक़्त कैसे निकाला जा सकता है? देखती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। किसी लाइफ में सीखने के लिए सबसे अहम चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ज़रूरी नहीं कि घंटे निकालें। रोज़ के 20-30 मिनट भी काफ़ी हैं अगर कंसिस्टेंट रहें। हुँ, तो वालिदैन और उस्ताद बच्चों में सीखने का शौक कैसे पैदा कर सकते हैं? चेक करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। पेरेंट्स और टीचर्स कई तरीकों से ये कर सकते हैं। खुद भी सीखने की एक पॉजिटिव एग्जाम्पल पेश करें। बच्चों को सवाल पूछने, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने और अपनी ओपिनियन रखने के लिए इनकरेज करें। गलतियों पर डांटने के बजाय ये सिखाएं कि गलतियां भी लर्निंग का हिस्सा हैं। घर में रीडिंग हैबिट डालें, क्लासरूम में इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ और मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करें। सबसे अहम है बच्चों की सिर्फ मार्क्स नहीं, उनकी क्यूरियोसिटी और कंसिस्टेंट एफर्ट की भी तारीफ करें। जब गाइडेंस, लव, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी के साथ हो तो लर्निंग का शौक खुद ब खुद पनपता है और वही शौक उन्हें फ्यूचर में सक्सेस की तरफ ले जाता है। अगर कोई शख्स ये समझता हो कि अब उसकी उम्र सीखने की नहीं रही, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? चेक करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक सीखने की चाह है, तब तक तरक्की के दरवाजे खुले हैं। बहुत से लोग लाइफ के बाद वाले फेज में भी नई स्किल सीख कर करियर चेंज कर लेते हैं या अपनी एबिलिटीज़ को और निखार लेते हैं। उम्र को रुकावट मत समझें। छोटी स्टेप से शुरुआत करें।
रोज कुछ मिनट पढ़ना, एक छोटा ऑनलाइन लेसन करना या कोई नया हॉबी ट्राई करना, यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े कॉन्फिडेंस और बड़ी अचीवमेंट में बदल जाते हैं। लर्निंग एज से नहीं, इरादे से जुड़ी है। तो चाहे आज से शुरू करें, आज ही आप ग्रोथ की नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आखिर में हमारी ऑडियंस यानी कि नाजरीन के लिए आप क्या हौसला अफ़ज़ा पैगाम देंगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी भर सीखने और मतलब ज़िंदगी भर सीखने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं? बिल्कुल, बहुत खूब सवाल। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि सीखने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। हर नया दिन एक नया मौका लाता है कुछ सीखने का। चाहे आप स्टूडेंट हों, टीचर, प्रोफेशनल या हाउसवाइफ, हर कोई अपनी लाइफ में नई स्किल्स, नया नॉलेज जोड़ सकता है। याद रखिए, जो लोग सीखते रहते हैं वही हर चीज को मौके में बदलते हैं। इसीलिए हर रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, नई चीजें सीखने, पॉजिटिव सोच अपनाने और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। आज जो आप सीखते हैं वही कल आपकी कामयाबी की बुनियाद बनता है। कभी सीखना मत छोड़ें, क्योंकि जो लोग लगातार सीखते हैं वही लगातार आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच चैटजीपीटी आपका। आपका भी आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी मोटिवेशन दी, बहुत धन्यवाद। अच्छी गुफ्तगू की और बहुत अच्छी नए-नए आपने मतलब तरीके बताए और किस तरह अपने आप को ग्रो करना है। एंड सुनने वालों को भी इससे एक लेसन अच्छा मिल सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।